Good morning. Good morning. How was your day yesterday? Very good, very good, very good. And how was your practice yesterday? Yeah, you want me to read? Yes, you can A read. few, like, I really like one of my friends' smile. I mean, I really like so I just wrote, "Thank you God for my beautiful smile." Yes, okay, nice. Then I wrote, "Thank you God for my perfectness." Like, I really like my mother-in-law is perfect. She's very perfect in everything. नहीं ये जस्ट बिकॉज यू आर अप्रिशिएटिंग हर दैट इज नॉट योर क्यू कि आप अपने लिए बोलो कि आप परफेक्ट है। No, I want myself to be perfect in everything. नहीं नहीं वैसे नहीं, वो आपके ड्रीम लिस्ट में होना चाहिए। Okay. ऐसा नहीं है कि हर जैसे आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप उसके लिए बोले कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई समथिंग। मतलब लुक फॉर क्यूज जहाँ पे आप ग्रेटफुल हो सकते हैं उनके लिए। जैसे सपोज उन्होंने आपके लिए कुछ किया तो आपको आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई चीज याद नहीं आई कि हाँ हमको इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, तो आपने किसी और को करते देखा तो आपको याद आ Yes. गया। उस तरह से जैसे कि अब कल मेरे साथ हुआ, आज सुबह ही हुआ। आई वॉज लिसनिंग टू द बर्ड्स चर्पिंग। तो भाई यू कैन बी ग्रेटफुल कि अरे मेरे पास सुनने की शक्ति तो है, मैंने कभी उसके लिए आई एम नॉट ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट, सो दैट इज माई क्यू टू बी ग्रेटफुल दैट आई कैन लिसन टू Hear them. थिंग्स। Yeah. Okay, no, your cue is not wrong. I am not saying that it is wrong, but look for multiple kind of things, is what I'm trying to tell you. ठीक है, अब जैसे Then I've ठीक written, है अगर आपको आपकी मदर इन लॉ परफेक्ट है और आपको उनके जैसा परफेक्ट होना है, वेल एंड गुड। बट वो जो स्माइल है, आप किसी की स्माइल अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसमें दैट इज यू जस्ट अप्रिशिएटिंग हर स्माइल। ओके, ठीक है, ओके और बोलिए। no, I want my smile to become like that. So that is why, I was. अच्छा Then ओके, I've चलिए, written, दैट्स ओके। thank you God for my melodious voice. ओके, क्या चीज Uh, के लिए th- बोला आपने, आपको कहाँ से क्यों मिला? yes, yes, I'm learning singing सिंगिंग। from my mentor. So I just want, I really adore her voice. So I just, ओके so yesterday was my class, so that I got a cue. That's it. ओके, Thank you God for my flawless skin. कैसे मिला आपको ये क्यों? Again, yes, I follow someone on Instagram. So yesterday I saw her, and then I got the cue. ओके Then thank you God for my ideal weight. ओके, And that's it. तो 7 नहीं हुए? 7 I've written. 6 ही हुए हैं अभी तक। I don't have, see, I've written one more. I don't have any sisters. So whenever I see my cousins and all, so मेरे को हमेशा लगता है कि I should have a sister. So I've written thank you God for my sister. नहीं, आप it's ये not नहीं right. नहीं लिख सकते ना, बिकॉज नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। Not possible, right? सो वो आप No, नहीं लिख no, सकते। why I've written so that I make some friend of नहीं mine. नहीं, Like, दैट इज नॉट योर okay, क्यू। नहीं। so I'll cut that. यस, लुक फॉर क्यूज। जैसे ना वहां पे लिखा हुआ था दैट समबडी, कोई न्यूज़पेपर किसी को पढ़ते देख रहे थे, थैंक यू गॉड फॉर द वंडरफुल न्यूज दैट आई विल रिसीव टुडे। यू नो थिंग्स लाइक दैट, Okay, okay, okay. थिंग्स फॉर योर हेल्थ। ओके, थिंग्स फॉर योर वंडरफुल रिलेशनशिप, जैसे आपने मदर इन लॉ के लिए बोला, या जैसे आपने किसी को आपने किसी अपने कजिन्स को देखा, सो थैंक यू गॉड दैट आई हैव कजिन्स टू सेलिब्रेट, दैट आई हैव Yeah. कजिन्स हु आर लाइक माय फ्रेंड्स। उस तरह से आप लिखिए। I was trying to write that, but I don't know. ठीक है. नहीं, दैट्स ओके, ठीक है, Yeah, वी आर ऑल जस्ट लर्निंग, इट्स ऑल राइट, yeah. नो इशू। ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर चैप्टर टुडे? We have covered so many areas of our life, but we've forgiven others for their mistakes, people who have hurt us। कोई नेगेटिव सिचुएशन है जहां पे हम किसी के साथ अपसेट हो जाते हैं, हमने उन लोगों को भी
we've forgiven those, we've been grateful for them, we've been grateful for all kinds of relationships in our lives, we've been grateful for our health, grateful for any financial situation that negative financial situation that we have. We've been grateful for the food, water, all the For five happiness. elements, for money that we've had in the past or that we want for the future. But the only person now that we've left is ourselves. Okay, so before we begin to be grateful for ourselves, we have to forgive ourselves for any kind of mistakes that haunt us. हम लोगों को बहुत बार ऐसी बातें होती है, बहुत बार हम लोग कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसके लिए हम लोग बार बार सोचते रहते हैं, अरे हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसको बहुत चोट पहुंचाई, काश कि मैंने उसको ऐसा नहीं बोला होता, काश कि मैंने उसको ट्रस्ट नहीं किया होता, उसने बेकार में, मतलब मैं, क्योंकि मैंने उसको ट्रस्ट किया, उसने मुझे या मेरे लव्ड वंस को किसी को धोखा दे दिया। ठीक है, काश कि मैंने अपने बेटे को इतनी जोर से नहीं डांटा होता। ठीक है, काश कि मैंने ये चीज ऐसे नहीं खरीदी होती, काश कि मैंने मतलब काश काश काश, बहुत हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हर बार कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, मैंने वैसा नहीं किया होता। और हम लोग सोच सोच के उसको ना अपना बहुत, अपने आप को हम लोग बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को क्या करना है, मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। कोई भी हम लोगों की मिस्टेक हो, जो हम लोग जिसके बारे में बार बार सोचते हैं और बार बार अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, उसको हम लोगों को कैसे ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, हाँ अंधेरी रात है, बादल है, काले बादल है, लेकिन काले बादल का आउटलाइन क्या है, सिल्वर आउटलाइन है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग। आज वहां पे रोशनी दिया हुआ है कि हाउ टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज ब्लैक एरियाज इन आवर लाइफ, जिसको हम लोग रोशन करेंगे आज। ठीक है, हर गलती हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, कभी बच्चा एकदम नहीं पढ़ रहा होता है ना, कभी बोला है बच्चे को कि फेल हो जाओगे ना, तब अक्कल आएगी, तब नेक्स्ट टाइम से ठीक से पढ़ना शुरू करोगे? कभी बोला है अपने बच्चे को ऐसे? No, no, I've never told. I've क्योंकि never कभी told. जरूरत नहीं पड़ी तो शायद नहीं बोले, लेकिन यस आई हैव हर्ड पेरेंट्स सेइंग दैट, नॉट ओनली फॉर देयर स्टडीज, कभी भी हम लोग Yeah. बच्चे को ऐसे बोल भी देते हैं कि जब गिरोगे नहीं तो उठना कैसे सीखोगे, Exactly. चोट Yeah. नहीं Yeah. लगेगी तो स्ट्रांग कैसे बनोगे, ये सब बोलते हैं ना बच्चों को। Yes. लेकिन हम लोग वही चीज ना अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग अपने ऊपर ये अप्लाई नहीं करते क्योंकि हम लोग कभी कोई गलती कर देते हैं ना, तो वी थिंक दैट वी शुड बी परफेक्ट। हम लोगों से कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, हम लोगों को हमेशा वी शुड ऑलवेज बी अबव ऑल दैट। बट वी आर Yeah. ऑल ह्यूमंस, वी विल मेक मिस्टेक्स। हम बल्कि हम ना दूसरों को भी माफ कर देते हैं, बच्चों को भी नहीं, हम लोग दूसरों को भी माफ कर देते, बोलते चलो कोई बात नहीं। कभी आपके कोई डोमेस्टिक हेल्प से या कोई ऑफिस के स्टाफ से कोई गलती हो जाती है, इफ यू आर इन अ गुड मूड यू जनरली टेल देम चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, नेक्स्ट टाइम से Yeah. ध्यान रखना। बट द ओनली पर्सन वी नेवर फॉरगिव इज ourselves. Ourselves. Okay, so let's see how we can turn our mistakes into blessings today. Okay, please Yeah. read. Yeah. Turn your wounds into wisdom. Yes, ओपरा विनफ्री क्या बोल रहे हैं हम लोगों को,
अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। मतलब कि जब भी आपको चोट लगे, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपसे कुछ ऐसा हो गया है जो आपको, जिससे कि आपको बार बार हर्ट हो रहा है, उनको आपको विजडम में बदलना है। मतलब कि आपको उनसे कुछ सीखना है और फिर सीख कर उस गलती को वापस नहीं दोहराना है। ठीक है। जब आप कोई Yeah. चीज से कुछ सीखेंगे, कब सपोज आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, आप अपने फोन में बात करते जा रहे हैं, आपने देखा ही नहीं कि सामने पत्थर है और आप गिर गए, आपको चोट लगी, तो आपको आगे से ध्यान रहेगा ना कि अगर आप फोन में बात भी कर रहे तो कम से कम सामने तो देखें कि कोई पत्थर है, तो आप उसको, उससे टकराए नहीं। यू विल बी केयरफुल। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं फोन में बात कर रही थी किसी से, एंड मैंने ना मेरा चाय का कप ट्रे सहित उठा लिया, एंड वो चाय मेरे ऊपर गिर गई। ठीक है। सो आई वॉज हर्ट। सो फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई रिमेम्बर्ड कि मेरे को कभी वो ट्रे के साथ में चाय का कप नहीं उठाना है। ठीक है। बिकॉज आई लर्न फ्रॉम इट एंड देन आई गॉट, मेरे में वो अवेयरनेस आ गई कि मेरे को ऐसा नहीं करना है। ठीक है। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी हैव टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ सो दैट वी डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it. Because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. यस। कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी आपने किया हो, आपने किसी को अननोइंगली ट्रस्ट कर लिया, कोई स्ट्रेंजर को, एंड उसने आपको हर्ट किया, या आपने कभी किसी को बोल दिया, या कभी शॉपिंग जाते हैं, दो तरह की दो सामान है, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, आपको पता है कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, पर आपको शॉपकीपर ने बोला कि नहीं नहीं ये नया आया है, आप ये बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं, और आपने शायद वो सस्ती थी तो खरीद लिया, बट आपको बाद में रियलाइज हुआ अरे मेरे को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो कुछ भी हो, you're always learning, you're always learning, but to learn you have to be aware, you have to be aware, you have to know that yes, I have made a mistake. ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or ride, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. यस। जब बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, छोटे छोटे बच्चे गलतियां करते हैं, हम लोग उनको कैसे बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो गया। हाँ। कभी कहीं बार बार आप उनको बोल रहे हैं ऐसा मत करो मत करो, फिर भी वो लोग करते रहते हैं वही सेम मिस्टेक। बच्चा कभी सीखना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, वो बार बार गलती करता है, सेम गलती बार बार करता है, आप उसको इरेज करते हैं, क्यों करते हैं? बहुत पेशेंटली आप उसको समझाते हैं, नहीं इसको Yes. ऐसे लिखो, और कभी आप उसका हाथ भी पकड़ के उसको सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि वो बच्चा है, वो अभी सीख रहा है, तो वो तो गलतियां करेगा ही करेगा। हाँ, जब आप कभी कुकिंग करते हैं, कभी आपसे कुछ आप सीख रहे होते हैं, कभी कुछ वो हो जाता है, कोई आप किसी को सिखा रहे हैं जैसे कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, अपने डोमेस्टिक हेल्प को सिखा रहे हैं, उससे गलती हो गई। हाँ, आप वो रोटी बना रही है, पूरा गोल नहीं हुआ, आपने उसको क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, दूसरा बनाओगी तो बेटर बनेगा, बोलते हैं। हाँ, दूसरा बनाओगी तो बेटर बनेगा, Yes. थर्ड बनाओगी तो और बेटर होगा। लेकिन क्यों हम लोग अपने आप से परफेक्शन का उम्मीद करते हैं?
हम लोग क्यों अपने आप को इतना बार 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 अपने आप को हर्ट करते हैं, बार बार अपने आप को ना नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को आई हैव टू बी परफेक्ट। ये हम लोग सब जन बार बार सोचते हैं कि मेरे से तो कभी कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई गलती नहीं होगी तो हम लोग सीखेंगे कैसे? जब कुछ गलत करेंगे तभी तो वो परफेक्शन को अप्रिशिएट कर पाएंगे ना। तो अगर कुछ सीखना है, एंड लर्निंग प्रोसेस में वी ऑल मेक मिस्टेक्स, तो उस मिस्टेक्स को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम अपने आप को उस मिस्टेक के लिए माफ करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम उस मिस्टेक से कुछ सीखेंगे नहीं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we've made, the pain we've suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. यस। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? दैट वी हैव द फ्रीडम टू मेक आवर ओन चॉइसेस। नाउ ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली स्पीशीज ऑन अर्थ जिसके पास चॉइस है। हम लोगों ने पहले भी बात करी Yes. है ना? हम लोगों के पास चॉइस है, कुछ भी करने का चॉइस है हम लोगों के पास में। आज अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ठीक है, आई हैव अ चॉइस, मैं उठूं या नहीं उठूं। मैं बोल सकती हूँ छोड़ो ना, मेरे को नहीं उठना सुबह जल्दी, मैं नहीं नहाऊंगी, मैं बिना नहाए बिना मुंह हाथ धोए मैं क्लास के लिए बैठ जाऊंगी। You have a choice. You don't want to wake up early, you will not wake up early. You will say, why should I get up? I will get a recording. Why should I attend the live session? You make a choice to get up early, isn't it? You make a choice to make breakfast for your husband, जो उनको पसंद का है। नहीं तो आप बोलेंगे, अगर उनका बर्थडे है, अगर आपको पता है कि उनको क्या पसंद है, ये आपकी चॉइस है, आप उनके लिए क्या बना रहे हैं ब्रेकफास्ट पे, उनको पसंद है वो बना रहे हैं, कि आज आप अपनी मदर इन लॉ की पसंद का बना रहे हैं, कि आज आप अपने बच्चे की पसंद का बना रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। सिमिलरली हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैंने वो शॉप का एग्जाम्पल दिया, आप शॉप में जा रहे हैं, आप दो ब्रांड की चीज देख रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, आपने कौन सा खरीदा, किसी ने तो आपको फोर्स नहीं किया है ना। बिकॉज आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसलिए आपने कोई एक चीज को सिलेक्ट किया है। यू हैव चोजन समथिंग टू डू। ठीक है, तो तब जब आपके पास इतनी चॉइसेस है, इसका मतलब है कि कभी ना कभी आप मिस्टेक्स करेंगे। जब हम अपने आप को उतनी फ्रीडम देते हैं कि हम अपने लाइफ में सब चीज बहुत अच्छे से कर सकें, जब पॉजिटिव्स का फ्रीडम हमारे पास है, तो नेगेटिव्स की भी तो चॉइस हमारी ही है ना। जब हम कोई चीज बहुत अच्छा करते हैं, जब हम उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि वाह यार क्या डिश बनाई, मजा आ गया खाते, आज तो बहुत अच्छी कुकिंग करी यार, वेरी नाइस। जब कोई हमको अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है ना। हाँ, तो जब वो चीज करने का फ्रीडम हमारे पास है, जब हम अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो जब कोई गलती होती है तो वो भी तो हमारी ही है ना, उसका Said भी ना तो कि फ्रीडम 100 हमारा ही है कि नहीं है? We have to own up to our mistakes. We have to accept first that I am a human being and I will make mistakes. सबसे पहला काम तो हमारा यही होना चाहिए that yes, I am a human being, I will make mistakes, I am not perfect, I am not God.
ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? हमको अपने आप को एक इंसान समझना है और हमको ये समझना है कि इंसानों से गलतियां होती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि इफ यू डू 100 राइट एंड वन रॉन्ग एंड एक रॉन्ग पूरा हाईलाइट हो जाता है, उसको दैट इज ओवरशैडो कर ओके, देता है। दैट इज ओके। बट यहाँ पे हम दूसरों और कोई आपकी गलतियों के बारे में आपको क्या बोल रहा है, हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आज हम क्या बात करें? आज हम अपने वी बारे हैव में टू बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे से कोई गलती हो सकती है। ठीक है, बट राइट। मैं तो एक इंसान हूं। जब मैं दूसरों की गलतियों को माफ कर सकती हूँ तो मैं क्यों अपनी गलतियों को माफ नहीं कर सकती हूँ? गलतियां हुई हैं, गलतियों से चोट भी पहुंचेगी, बट जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मिस्टेक्स कैन हर्ट बट इफ वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, जब तक हम उस चोट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उससे ये नहीं सीखेंगे कि मेरे को ये गलती आगे से नहीं करनी है, तब बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम क्या करेंगे? हम उसी गलती को बार बार रिपीट करेंगे। जैसे कि हमने छोटे बच्चे के लिए बोला, वो बच्चा बार बार लिख रहा है, ही इज मेकिंग द सेम मिस्टेक, और हम क्या कर रहे हैं? हम उसको बार बार इरेज कर रहे हैं। हम उसको, वो उसको बार बार वही चीज लिखने को बोल रहे हैं। लेकिन उस जब तक वो बच्चा खुद नहीं समझेगा कि मेरे को कैसे इसको ठीक करना है, तब तक तो वही गलती वो बार बार कर रहा है ना। तो उसको करेक्ट करने के लिए तो उसको समझना होगा कि मेरे को ये चीज कैसे सही तरीके से करनी है कि नहीं है? तो या जब तक वो मिस्टेक नहीं करेगा, उसको सही तरीके से करना आएगा नहीं। उसको सही तरीके से करना तभी आएगा जब वो उस मिस्टेक से कुछ सीखना चाहेगा। ठीक है, उस मिस्टेक से सीखने के लिए उसको क्या करना होगा? उसको समझना होगा कि उससे गलती हुई है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द मदर कि आपने मेरे को ऐसा सिखाया, द चाइल्ड हैज टू अंडरस्टैंड दैट यस आई हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। to learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. यस, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है ना, कि हम लोग दूसरों को हरदम ब्लेम करते हैं। यस, तो अगर आज आप कोई डिश बना रहे हैं, हाँ सपोज रोटी बना रहे हैं, आज रोटी अच्छी नहीं बनी, कुक ने, वो मेड ने आटा गीला लगा दिया। ठीक है, आज ना तवा ठीक से गर्म नहीं हुआ, आज आज कोई और कंपनी का आटा मंगाया था मैंने, गलती मेरी नहीं है, बाकी सब चीजों की गलती है। तुम तो कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते हो, चाहे कैसा भी बना दो। तो क्या हो रहा है कि हम अपनी गलती को नहीं देख रहे हैं। अगर आटा गीला था तो जब आप रोटी बना रहे थे तो आप तो देख रहे थे ना कि आटा गीला है, आपको करेक्ट करना चाहिए था। तवा अगर ठीक से गर्म नहीं हुआ है तो किसकी गलती है? आप वेट कर सकते थे, द चॉइस वाज योर्स। है कि नहीं है? तो जब हम Yes. दूसरों को कंप्लेन ब्लेम करना बंद करेंगे ना, हम अपनी गलती को समझेंगे, तभी हम उससे कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, हर इंसान यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशान है। एवरीबडी इज अपसेट, एवरीबडी हैज सम गिल्ट, सम हेट्रेड, सम फियर, समथिंग नेगेटिव फीलिंग इनसाइड देम। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई दुख नहीं है, या कोई चिंता नहीं है, या कोई अपने लिए कोई गिल्ट नहीं है, कोई फियर नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक वो इंसान
अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद नहीं करेगा, जब तक कि इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक वो उस गलती से कुछ सीख नहीं पाएगा। और जब तक हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम उसको बार बार अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू। Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. यस, अब देखिए जनरली क्या होता है, पूजा के समय में कलकत्ता में हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह पे पुलिस खड़ी रहती है, हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा कमाने का धंधा है ये तो। Yes. बोलते हैं ना हम लोग ऐसे कि हर मोड़ पे खड़े हो जाते हैं, पैसे कमाने के धंधे, गलती करो नहीं करो। अरे आप गलती नहीं करेंगे तो क्यों आपकी गाड़ी को रोकेंगे? है कि नहीं? कहीं ना कहीं आपने कुछ तो किया होगा ना। लाखों गाड़ियां जा रही हैं, आप ही की गाड़ी को क्यों रोका गया है? ठीक है, तो वही ये यहाँ पे बोल रही है कि हम लोग अपनी गलती तो देखते नहीं है, पुलिस वाले को बोल देते हैं कि वो लोग हर जगह आके खड़े हो जाते हैं, पैसे कमाने का धंधा है उन लोगों को तो, मतलब करप्शन इतना बढ़ गया है, ये सब तो इस गवर्नमेंट का खेल है। इतना तरह का हम लोग बात बोल देते हैं, लेकिन हमने सिग्नल तोड़ा है या हमने स्पीडिंग करी है वो हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, या तो कि हम वन वे में गाड़ी घुसा के ले गए हैं, हमने अपनी गलती नहीं देखी है, हम पुलिस वाले को ब्लेम कर रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। ठीक है, तो गलती तो हमारी है क्योंकि हमने मिस्टेक करी है, पर जब तक हम अपनी मिस्टेक को ओन अप नहीं करेंगे, हम वही सेम मिस्टेक नेक्स्ट सिग्नल पे भी करेंगे, फिर हम वापस से करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, दैट मे बी द मिस्टेक विल बिकम सो ग्रेव that finally the universe will only tell us that yes, now you have to own up your mistake. अभी तो इतनी छोटी सी गलती थी, बट वो हमने क्योंकि ओन अप नहीं किया, हमने उससे कुछ सीखा नहीं, वो बढ़ बढ़ के फाइनली वो इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि यूनिवर्स ही हमको वो बताएगा कि अब तुमको ओन अप करना ही पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे, काश मैंने पहले ही सीख लिया होता। Right. आपने कभी बच्चों को आ, बोलते सुना है कि अगर आप पहले ही मेरे को डांट देते तो आज जैन, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फॉर डॉटर्स जनरली कभी सुना है मदर्स को बोलते हुए कि फिर ससुराल से आके ना मेरे को ही बोलोगी कि मम्मी आपने सिखाया नहीं मेरे को। Yes. जब छोटे थे मम्मी लोग बोलते थे ऐसे कि अभी सीख लो बेटा, नहीं तो ससुराल से आके ना फिर मेरे को ही बोलोगी कि मम्मी अगर उस समय डांटा होता ना तो आज मैंने ये गलती नहीं करी होती। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों के लिए शुरू से उनसे कुछ सीखना शुरू कर देंगे, आप पहले ही अपनी गलतियों के लिए सीखना शुरू कर देंगे, तो मतलब आप बाद में उनको वही सेम मिस्टेक्स आप उनको नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। The problem with blaming other people for our mistakes is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we'll attract making the same mistake again. यस, अब कोई आपका कोई साइकिल है, हाँ, थोड़ा उसका जो चेन है उसमें रस्टिंग हो गई है। ठीक है, अब आप साइकिल चला रहे हैं, आप गिर गए, आपको चोट लगी, हाँ, आपने दोबारा से साइकिल चलाई, आपको चोट लगी।
आप देख ही नहीं रहे कि आपको क्यों चोट लग रही है। आप बार बार गिर रहे हैं, बट आप अपने साइकिल को चेक ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिपेयर नहीं करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप तो बार 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 आपको चोट लग रही है ना। तो जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप तो बार बार गिरते जाएंगे, है कि नहीं है। तो जब Yes. तक कि आप कुछ सीखेंगे नहीं अपनी गलतियों से, आपको बार बार चोट लगती ही जाएगी। ठीक है, अगर जैसे सपोज कोई इंसान है, हाँ, एक कहावत है, फूल मी वंस आई एम रॉन्ग, फूल मी नहीं, फूल मी वंस यू आर रॉन्ग, फूल मी ट्वाइस आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, आई केप्ट ट्रस्टिंग यू। मैंने तुमको बार बार ट्रस्ट किया, तुमने एक बार गलती करी, ठीक है, तुम्हारी गलती, लेकिन अगर मैंने तुमको दोबारा भी ट्रस्ट किया तो Yeah, अब that's किसकी my point. गलती, मेरी गलती। मेरे Yes. को नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने सीखा नहीं, मैंने मेरी गलती से सीखा नहीं, तो क्या हुआ, मैंने वही गलती सेम वापस से दोहराई, वापस से दोहराई तो मेरे को वापस से चोट लगी। करेक्ट, प्लीज कंटिन्यू। You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about human being human. But you must learn from your mistakes, otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. यस, जब तक आप, जैसे कि हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हम लोग इंसान हैं, टू err इज ह्यूमन। Yes. हाँ, गलतियां वही, मतलब गलतियां करेंगे तभी हम इंसान हैं। Yes. तो अपने आप को बार बार उसके लिए बीट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या चीज की है, कि हम उससे कुछ सीखें और अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराएं। अगर हम दोबारा नहीं दोहराएंगे तो हम अपने लाइफ में वो अननेसेसरी जो पेन है, वो ही सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जहां हम और गिल्ट फील करेंगे, जहां हम और हेट्रेड फील करेंगे, जहां हम और वरी, चिंता, दुख फील करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, कभी भी कोई भी गलती हो, उससे कुछ सीखने की जरूरत है। ठीक है, आज आपसे कोई डिश अच्छी नहीं बनी है, कोई बात नहीं है, इंसान का हाथ है, हर समय तो नहीं बनने का वो है ना। इवन द बेस्ट मिशेलिन स्टार कुक्स, समटाइम्स दे मेक डिशेस विच आर नॉट परफेक्ट। ओके, सबसे गलतियां होती है एकदम। वो एम एफ हुसैन ने भी कोई ना कोई पेंटिंग जरूर ऐसी बनाई है जो परफेक्ट नहीं थी। ठीक है, सबसे गलतियां होती है, सब गलतियां करते हैं, बट उनसे सीखने की जरूरत है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? यस, अब क्या बोल रहे हैं कि कैसे हम सीखेंगे उन मिस्टेक्स से जो अभी तक करते आ रहे हैं। कोई भी सिचुएशन है, हमसे जो भी गलती हुई है उसमें हम ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे और हम उनके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होंगे। अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं और हम उसको बार बार अपने आप को खाली दुखी हो रहे हैं, काश मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम अपने आप को बीट करते जा रहे हैं, हम रोते जा रहे हैं, ओहो मेरे से तो ऐसी मिस्टेक हो गई, इतना नेगेटिविटी जब हम अपने अंदर ले आते हैं तो हम और क्या अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही सिचुएशंस और अट्रैक्ट करते हैं जहां हम अपने आप को और बीट करेंगे, जहां हम और दुखी होंगे, जहां हम और गिल्ट फील करेंगे। बट जैसे ही हमने उन उस मिस्टेक से कुछ सीखा और उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल होने लगे, तो क्या हुआ, हमने उनमें ब्लेसिंग्स ढूंढी। और ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स जब हम ढूंढ रहे हैं, जब हम उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है,
हम अपने लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करें जहां हम और ग्रेटफुल होंगे, तो मिस्टेक्स विल अट्रैक्ट मोर मिस्टेक्स एंड ब्लेसिंग्स विल अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with the person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. यस. आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि आज हम लोगों को अपने पास्ट में जाके कोई एक ऐसी गलती ढूंढनी है जिसके लिए हम बार बार अपने आप को ब्लेम करते हैं, जो हमको बार बार चोट पहुंचाती है. ठीक है, हो सकता है आपने अपने किसी फ्रेंड को बहुत बुरा भला कभी बोल दिया हो. हाँ, उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करी और आपने उनको बहुत बुरा भला बोल दिया, उसके कारण अब आपके संबंध अच्छे नहीं है. हो सकता है कि आपने कभी कोई एग्जाम दिया हो, आपने उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किया हो और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए और आप वो अब परस्यू नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते थे. ठीक है, या हो सकता है कि आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीद ली हो सस्ती समझकर और आपको बहुत, मतलब आप अब उसके लिए बहुत रिग्रेट कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कि आपने कभी किसी को बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया और उन्होंने आपको बिट्रे कर दिया, आपके फैमिली में किसी को बिट्रे कर दिया. या हो सकता है आप अपने हेल्थ के लिए ही ले लीजिए, आपने अपना बहुत ध्यान नहीं रखा कभी एंड आपको बहुत, उसके लिए आपको बहुत चोट लगी, या आपको हेल्थ में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ गए. तो आपको अपने लाइफ में ढूंढना है, कोई एक ऐसी गलती को ढूंढना है जिसके लिए आप अभी तक अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं और जो अभी तक आपको चोट पहुंचाती है. ठीक है, हो सकता है कि आप, मतलब जैसे कभी भाई भाई के बीच में हो जाता है, कोई कोई रिलेशनशिप ऐसे हो जाते हैं कि किसी ने किसी को बहुत इतनी बुरी तरह से कुछ चोट पहुंचाई. हाँ, कि अब आप बड़े हो गए, 4-5 साल हो गए, अब आपको लगता है कि अरे मैंने उसको ऐसा नहीं बोला होता, उसने तो बोल दिया, पर अगर मैंने रिटेलिएट नहीं किया होता, मैंने उसको कुछ नहीं बोला होता, तो सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं होती, आज हम एक साथ रह रहे होते, हमारे परिवारों में आज जो सिचुएशन है वैसी नहीं होती. ठीक है, तो आपको ढूंढना है कि किस, आपकी क्या गलती है और आपको उसको उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढने हैं. अब कैसे ब्लेसिंग्स ढूंढने हैं, देखिए. Once you've chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? यस. अब सपोज कि जैसे हमने दो भाइयों के बारे में बात करी, तो अब व्हाट इज, मैंने उससे क्या सीखा कि मेरे को बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए. मेरे को अगर किसी ने मेरे को कुछ बोला तो मेरे को हमेशा सोच के, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आई शुड रिस्पॉन्ड. मेरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने आप को एंड फिर मेरे को उसको उसको कुछ जवाब देना चाहिए. हाँ, तो व्हाट डिड आई लर्न कि मेरे को मतलब अगर हमको रिश्ते बना के रखने हैं तो हमको थोड़ा सा सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए. ठीक है, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक, कि मे बी अब मैं अपने बाकी भाइयों से थोड़ा क्लोज हो गया हूँ, मैं अपने फैमिली में अपने बेटे बेटियों के साथ क्लोज हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ क्लोज हूँ, मेरे उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं. ठीक है, आई हैव अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स. हाँ, उस तरह से आपको ढूंढना है कि आप क्या, आपने क्या सीखा एंड उस गलती से आपने और क्या अच्छी चीजें पाई. ठीक है, तो दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क योरसेल्फ. ठीक है, अब लेट्स कंटिन्यू. The most important things
to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. यस, अब देखिए क्या बोल रहे कि हर मिस्टेक से हम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। छोटी हो या बड़ी हो गलती, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने देखा नहीं, अगर आप चलते जा रहे हैं, आप अपने बेड से ही टकरा गए, आपके अंगूठे में चोट लग गई, तो वो भी तो गलती आप ही की है ना, क्योंकि आप बिना देखे चल रहे थे, तो आपने उससे भी तो कुछ ना कुछ सीखा ही है कि नहीं? तो कोई भी गलती हो, आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। आपको ढूंढना है कि आपने उनसे क्या सीखा और आपके लाइफ में उसने कैसे पॉजिटिव बदलाव लाया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ की कोई एक ऐसी मिस्टेक को ढूंढना है जिससे आप कुछ सीखते हैं। ठीक है, आपको कम से कम 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। सो दिस विल टेक टाइम। आपको शांति से बैठना होगा। यू शुड हैव सम टाइम, आधी पौन घंटा 1 घंटा का टाइम निकालिए। हाँ, सोचिए। पहले तो अपनी एक गलती को ढूंढिए कि आपको कौन सी गलती को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उस गलती में ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। आपको लगेगा एक ही मिल रहा है, दो ही मिल रहा है, शांति से सोचिए। बहुत टाइम दीजिए अपने आप को, उस गलती के बारे में सोचिए, फिर उसमें से ब्लेसिंग्स ढूंढिए। आपको यहाँ एग्जाम्पल देंगे, आप उन एग्जाम्पल्स को भी बार बार पढ़ के भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या ब्लेसिंग्स ढूंढनी है, आप उस तरह से भी देख सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स आउट ऑफ दैट मिस्टेक। ठीक है, एंड आपको उनको अपने जर्नल में लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है और क्या ब्लेसिंग्स ढूंढनी है, लेट्स सी। दे आर गिविंग अस एन Let's take the एग्जांपल। example of being Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because after all, that was all they were trying to do. यस, अब I'm देखिए grateful to क्या the बोल police रहे हैं because कि every example we will halt. हाँ, yeah, आई एम ग्रेटफुल फॉर द पुलिस। अच्छा, पुलिस क्या करे? आप स्पीडिंग कर रहे हैं तो आप ही को चोट लगेगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे को मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊं, उसी से मेरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग तो अपना ही काम कर रहे हैं ना। तो आई कैन नॉट ब्लेम देम, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. यस, हो सकता है आप फोन में बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है आप म्यूजिक सुन रहे हैं और आपके मतलब अचानक से ना आपका कोई फेवरेट गाना आ गया, आप उसी में ही खो गए। यू नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली आप कहाँ जा रहे हैं, और उन्होंने आपको पकड़ा। इसीलिए फोन में बात करने के लिए मना करते हैं आजकल। हाँ, तो मतलब मिस्टेक वॉज माई ओनली, आई एम ओनिंग अप टू इट। तो आई एम ग्रेटफुल कि वो लोग ने मेरा ध्यान वापस से रोड पे ले आए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. यस, हो सकता है कि मैं स्पीडिंग कर रही हूँ और मेरे टायर में उतनी हवा ही नहीं है। हाँ, तो वो लोग ने मेरे को बताया कि आप स्पीडिंग कर रहे हैं और आपके टायर में हवा ही नहीं है। ठीक है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Yes, because I had to pay a fine, I will be more careful in the future and I will not speed anymore. ठीक है, please continue. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught,
and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. यस अब क्या है, देखिए क्या बोल रहे हैं। कई बार जनरली टीनेजर्स को ये चीज दिमाग में आता है कि अरे क्या फर्क पड़ता है, स्पीडिंग कर भी लेंगे तो कोई पकड़ेगा थोड़ी, इतनी रात हो गई है, कभी पुलिस वाले होते ही नहीं है पकड़ने के लिए। हाँ, बट वो लोग ये नहीं सोच रहे होते हैं कि वो लोग अपने आप को भी चोट पहुंचाते हैं, किसी दूसरे को भी चोट पहुंचाते हैं, है कि नहीं है। तो आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस बिकॉज मेरे ये जो दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और मैं कर सकता हूँ स्पीडिंग, उससे उन्होंने मेरे को बचाया, मेरे को अपने आप को चोट पहुंचाने से बचाया, दूसरों को भी चोट पहुंचाने से बचाया। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I'm really grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. यस देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूं कि जब वो लोग सड़कों पे हैं और कोई स्पीडिंग ड्राइवर आके उनको चोट पहुंचाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो थैंक यू गॉड कि उन्होंने मेरे को भी रोका। ठीक है, दैट दे आर डूइंग देयर जॉब एंड प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑन द रोड्स। I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. यस आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द पुलिस कि वो लोग हर पेडेस्ट्रियन, हर इंसान जो सड़क पे चल रहा है उसको सेफ और सिक्योर रखते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. यस प्लीज कंटिन्यू। I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked to the door to my family as I usually do. यस कि मैं घर वापस सही सलामत आ गया मेरे फैमिली के पास में। दे इंश्योर, वो लोग को हर मतलब रोज वो लोग इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं बट फिर भी वो लोग अपना काम बहुत कॉन्शियसली करते हैं, कंसाइंशियसली करते हैं कि मैं, मेरा फैमिली और बाकी लोग भी हमेशा सुरक्षित रहें। They ensured that I came home safe to my family. I had the time to spend with my family. I came back and I could see my children, my family at home. ठीक है, please continue. I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. यस अब देखिए और कितना कुछ हो सकता था सड़क पे जिससे कि हमारी स्पीडिंग रुक जाती। हो सकता है हम कहीं जाके टकरा जाते, हो सकता है हमसे भूल से किसी को चोट लग जाती, हो सकता है कोई और कुछ हो जाता, बट वो सब होने से बेटर क्या हुआ कि पुलिस ने ही मुझे रोक दिया। सो दिस वाज द लीस्ट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, आपको इस तरह से 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। ठीक है, जैसे आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स आल्सो। हाँ, अगर आप सपोज आपने कोई शॉपिंग में कोई सस्ती चीज खरीद ली तो आपको हमेशा क्या रहेगा कि अब मेरे को वो ही सामान खरीदना है जो मैं हमेशा खरीदती हूँ। हाँ, आप बोलेंगे कि नहीं, अब से मैं मार्केट में जाऊंगी तो मैं किसी की बात में आके कोई नया ब्रांड नहीं खरीदूंगी। इस तरह से आपको ढूंढना है अपनी ब्लेसिंग्स। ठीक है, यू कैन गो ऑन रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो। आपको इनसे भी बहुत मोटिवेशन, बहुत वो मिल जाएगा कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स कैसे ढूंढनी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I would strongly urge you to take any mistakes you've made in your life and that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like this? Like यस that? अब क्या बोल रहे कि आज तो हम एक ही मिस्टेक के बारे में लिखेंगे
बट अगर आपके लाइफ में और भी ऐसी मिस्टेक्स आपने करी हैं जिनके बारे में आप बार बार सोचते हैं और नेगेटिव फील करते हैं, तो आप उसके बारे में भी ब्लेसिंग्स ढूंढ के अपने उन ब्लेसिंग्स को, अपनी उन मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन मिस्टेक एट अ टाइम। ठीक है, उसके बारे में जब तक आप बेटर फील नहीं कर ले, उसके बारे में बार बार लिखिए। ठीक है, कोई भी ऐसी मिस्टेक है, कोई एक ऐसी ग्रेव मिस्टेक है जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आप उसके बारे में जब 10 लिख लें एंड इट मेक्स यू फील बेटर कि हाँ चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, आई कैन मूव ऑन। बट नहीं, वो अगर आपके दिल में अभी भी चोट पहुंचा रहा है तो आपको उसको बार वापस से लिखिए, उसके बारे में नेक्स्ट डे वापस से लिखिए, नेक्स्ट डे वापस से लिखिए, जब तक कि वो आपको बेटर फील नहीं कराने लग जाए, एंड जब तक यू कैन नॉट लेट गो ऑफ दैट मिस्टेक। लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी और ने मिस्टेक करी तभी भी लेट गो, अगर आपसे गलती हुई है तभी भी लेट गो। वो लेट गो करना बहुत जरूरी है उसको, कि हो गई कोई बात नहीं। जब तक आप ऐसा अपनी मिस्टेक के बारे में नहीं सोचते हैं तब तक लिखते जाइए। ठीक है, और जब एक मिस्टेक के बारे में आपको हाँ लगता है कि चलो हो गया कोई बात नहीं है, आप मूव ऑन करने लग गए, तब आप अपने दूसरे मिस्टेक के बारे में सोचिए। ठीक है, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 26। Magically transform mistakes into blessings. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Choose one mistake you made in your life. Find a total of 10 blessings you're grateful for as a result of making that mistake and write them down. To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Now we are doing count our blessings every day. We are writing our 10 blessings. We are rereading them, and after each blessing, we are saying thank you, thank you, thank you. रात को हम अपना मैजिक रॉक पकड़ के सोते हैं, हम अपने दिन भर को स्कैन करते हैं, जो भी बेस्ट चीज है उसके लिए थैंक यू बोल बोल के हम सो जाते हैं। आज हमको अपने लाइफ में कोई एक ऐसी मिस्टेक ढूंढनी है जो हमसे हुई है और हमको वो बार बार हर्ट करती है, हाँ, जिसके बारे में हम बार बार थोड़ा नेगेटिवली सोचते हैं, हम सोचते हैं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ एक ऐसी मिस्टेक को हमको ढूंढना है, उनमें हमको कम से कम 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है उस मिस्टेक में। ठीक है, अब वो ब्लेसिंग्स हम लोग कैसे ढूंढेंगे, हमको उनसे क्या पूछना है, हमको 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। एक तो कि उस मिस्टेक से हमने क्या सीखा, और दूसरा क्या ढूंढना है कि उस मिस्टेक से क्या अच्छी बात निकल के आई। ठीक है, तो ऐसे हमको करके आज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ये चैप्टर वापस से पढ़िए, आपको समझ में आएगा किस तरह से मिस्टेक ढूंढनी है अपनी, किस तरह की मिस्टेक ढूंढनी है, फिर कैसे आपको उनमें ब्लेसिंग्स ढूंढना है वो भी समझ में आएगा। रीड द चैप्टर अगेन, इट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, प्लीज यश श्वेता। वन थिंग आई वाज सेइंग, जब हम लोग अपना ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे मिस्टेक में, तो मेरे को लगता है वील टेंड टू राइट नेगेटिव वर्ड्स ओवर देयर। नहीं नहीं, यू हैव टू बी कॉन्शियस, एंड आपको उसी तरह से ही लिखना है कि अब जैसे ठीक है, आप जब वहां पे आप ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है यू माइट यूज वर्ड्स लाइक हर्ट, जैसे इन्होंने भी यूज किया दैट इट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम हर्टिंग अदर्स, सो दैट इज ओके, दैट इज ओके, बिकॉज यहाँ पे तो आप उसको एक ब्लेसिंग की तरह से लिख रहे हैं, सो दैट इज ओके।
ठीक है, बट आई वुड Okay, स्टिल thank से you. कि जितना कम ये वर्ड्स यूज करेंगे ना उतना बेटर। Yes. ओके, जितना कम ये वर्ड्स यूज करेंगे उतना बेटर है। आ, उनके लिए ना कोई सब्स्टिट्यूट एक पॉजिटिव वर्ड का ढूंढिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं तो वी कैन डू अ प्रेयर फॉर द डे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, और आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आप उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से विश्वास के साथ भगवान जी को बोलिए, भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू आपका। आपने मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान दिया। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, इस मनुष्य योनि में जीवन दान दिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए भगवान जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे इतने अच्छे इतने प्यारे माँ बाप दिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का हर खुशी का ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे मम्मी पापा को इतना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने अच्छे टीचर्स, इतने प्यारे गुरु लाने के लिए, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, अपने पाँव पे खड़ा रहना बताया, हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे को इतने अच्छे टीचर्स से ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, मेरे परिवारजनों को और दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू मुझे हमेशा फिट फाइन एंड हेल्दी रखने के लिए। भगवान जी मुझे हमेशा हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, मुझे रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए,
पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए भगवान जी, जरूरत का हर सामान देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये अमेजिंग मैजिक बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी इस मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया, अपने सपनों को साकार करना सिखाया। थैंक यू भगवान जी बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू, छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू, मुझे मेरे सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. My struggles are opportunities. My struggles are opportunities. My past does not determine my future. My past does not determine my future. I am growing wiser each day. I am wiser each day. I choose to release myself from the weight of my regrets. I choose to release myself from the weight of my regrets. So help me, God. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shweta, for your reading. Thank Thank you. you, Thank you so everybody, much. for your patience. Thank you. For tomorrow, I would like everybody to listen to The Man in the Mirror by Michael Jackson. उनका ये गाना है, प्लीज उसको जरूर सुने, उसके लिरिक्स send को the link? देखकर। हाँ, ये Can you आपको send the link? YouTube में मिल जाएगा, रेडिली अवेलेबल है YouTube में। आप गूगल में टाइप करिए, आपको आराम से मिलेगा। उसको जरूर सुनिए विद लिरिक्स, अगर सुन सकते हैं तो लिरिक्स के साथ सुनिए। कल आने के पहले उसको जरूर सुन के आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको सुन के। The man who sent. द मैन इन द मिरर। The man in the mirror. Okay. यस, ठीक है, माइकल जैक्सन का गाना है, जरूर सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। कल आने के पहले उसको सुन के आए, और कल अपने साथ एक मिरर लेकर आए। एक पॉकेट मिरर हो तो अपने साथ उसको लेकर आए, उसको देख के कल हमको क्लास करनी है, ठीक है। सो One thing, Shalini, can I tell you something? यस, Like my mom is into Brahma Kumaris. She used to tell me, I never used to take interest. Abhi, I told my mom about this magic class. She is so grateful and she's so thankful to you. Every day she'll ask me कि आज क्या हुआ, the takeaways, and she is really blessing you every day that you are changing my life. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक Yeah. यू। बट Thank you. कोई भी हो, ब्रह्म कुमारीज हो, सदगुरु हो, सब जन ना एक ही चीज बोलते हैं। Yes. हाँ. सब एक ही चीज बोलते हैं, वो हम लोगों के Right. ऊपर है, पता है कि हम लोग क्या Actually, no, चीज I'm telling को, you the language is different. समझाने का तरीका अलग है. हम लोग सबके ऊपर है कि हम लोग किसको सुन के और हम लोग किसकी Right. बातों को ग्रहण करते हैं, बस वही बात है। ये एक्चुअली इतने सिंपल तरीके से बताया गया है ना,
क्या होता है, ब्रह्म कुमारीज को ना पहले हमारे भी सब बड़े, हमारी मम्मी भी सुनती थी, मदर इन लॉ भी सुनती थी, वो लोग कुछ बोलते थे ना तो लगता था ज्ञान है, बेकार का ज्ञान मत दो प्लीज। अब हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये ज्ञान नहीं है। फर्स्ट थिंग जो हम जनरली बोलते हैं ना जब हम क्लास शुरू करते हैं, हम बोलते हैं ये ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान समझना है तो प्लीज इसमें मत घुसिए, आप अपने Yeah. आप को हेल्प नहीं कर पाएंगे। दिस इज ओनली अबाउट हेल्पिंग योर सेल्फ। इससे मेरे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना आपकी Yeah. मम्मी को कोई फायदा हो रहा है, ना आपकी मदर इन लॉ को कोई फायदा हो रहा है, सिर्फ आपको ही फायदा हो रहा है। Yeah. ठीक है, तो अगर ज्ञान समझेंगे तो जैसे बच्चे, आजकल आप अपने बच्चों को बोल के देख लीजिए, बच्चे क्या बोलेंगे, ओ फो मम्मी प्लीज क्या दिन भर Yeah. ज्ञान देती रहती हो, छोड़ो ना। तो वैसे ही हम लोग भी अपने पेरेंट्स को बोलते हैं। जनरली क्या होता है जब कोई स्ट्रेंजर या कोई फ्रेंड कुछ बोलता है ना, तो उसका इम्पैक्ट दूसरा होता है। Right. ठीक है, दिस इज वाई, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा हो। Thank you. You too. थैंक यू Thank you. एवरीबॉडी, Bye. कल वापस Bye. मिलेंगे। Yeah. Bye.